Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU DOST. Welcome to session 26 on environmental studies. Environmental studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this paper would be multiple choice questions. The short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU DOST will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 26. So question is, which is not a source of fresh water? देखो fresh water क्या है? There is a term that is hydrosphere. ठीक है? Hydrosphere means, hydro means water, sphere means area. So hydrosphere is an area where there is water. Earth का total 70%, 71% area जो है that is covered with water. However, उसमें से there is major portion is of marine water, salty water and कुछ percent जो उसका है that is of fresh water. ठीक है? So total area of earth कितना area is covered with water, that is 71%. उसमें से 97.5% we do have marine water and only 2.5% हमारे पास क्या है, fresh water है. ठीक है? 2.5% is the total fresh water that is available to us. तो मैंने 2.5% को 100% water मान के चला, क्योंकि फॉर ऑल द एक्टिविटी रूटीन में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वेदर हम इरिगेशन के लिए यूज करें या पीने के लिए, नहाने के लिए, किसी भी काम के लिए जो पानी यूज करते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर इज 2.5% ओनली. ठीक है? सो 2.5% जो पानी है, सो दिस इज द टोटल वाटर दैट इज अवेलेबल टू अस. ठीक है? सो 2.5% को मैंने 100% मान के चला. उसमें से 69%, almost 69% is present as ice and glaciers. So yes, the water present as ice sheets and glaciers is a fresh water. So fresh water का major जो portion है, almost 69% part is present as glaciers and ice. उसका almost 30% is present as आपका ground water. ठीक है? And less than 1% is present as surface water. Surface water includes rivers, ponds, streams. So this is the surface water. ठीक है? So मैंने अभी आपको बताया कि जो 2.5% fresh water available है, उसकी क्या क्या उसके डिवीजन कैसे है. ठीक है? So उसका 69% के आसपास, almost 69% is present as glaciers and ice sheets. उसका 30% जो है that is present as your groundwater, and almost less than 1% is present as surface water that includes river, ponds, streams, etc. Okay. So which of the following is not a source of fresh water? Glaciers and ice sheet, it is a fresh water, source of fresh water. Groundwater, again source of fresh water. Surface runoff, देखो surface runoff basically आपका, हम कहते हैं कि जो रेनफॉल होती है जब, तो वहां से एकदम से पानी जो सरफेस से रन ऑफ करता है. ठीक है? सो ड्यूरिंग द रेन जो सरफेस रन ऑफ वाटर है, दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर, क्योंकि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. सो सरफेस रन ऑफ इज फ्रेश वाटर. Ocean water is marine water. It is not a fresh water. So answer to this particular question is oceans. Second question is, which of the following is not cause of water scarcity? So इसमें से किसके कारण पानी की कमी नहीं हो रही है? ओके, सो ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है, जिसके कारण वाटर स्कार्सिटी हो रही है. सो दिस इज द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी. ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ऐसी क्रॉप लगाना जो कि ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करती हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि तुम ऐसी क्रॉप्स लगा रहे हो जो ज्यादा पानी लेती हैं. एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. इरिगेशन फैसिलिटी आपकी होती है लाइक फॉर्मेशन ऑफ पॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ डैम्स, या फॉर्मेशन ऑफ लाइक ऐसे तुमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. ठीक है? ट्यूबवेल्स कह सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें तुम पानी इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, टू यूज इन द इरिगेशन पर्पस, टू यूज फॉर द इरिगेशन पर्पस इन एग्रीकल्चरल फील्ड. सो दीज आर द इरिगेशन फैसिलिटीज. तो अगर ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी तो ज्यादा से ज्यादा तुम पानी यूज करोगे. दिस विल ऑल्सो लेट्स टू वाटर स्कार्सिटी. सो अगर हम डी ऑप्शन पढ़े, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है टू कलेक्ट एंड स्टोर द वाटर, रेन वाटर. ठीक है? रेन वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करना इज वाटर हार्वेस्टिंग. सो वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी, वी आर कलेक्टिंग द सरफेस रन ऑफ वाटर.
या वी आर कलेक्टिंग या फिर डायरेक्टली आपका जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। सो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक में टेक्निक्स आर द कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ द रेन वाटर, जिसमें या तो तुम सरफेस रन ऑफ वाटर को कलेक्ट कर रहे हो या फिर डायरेक्टली आपका जो रेन वाटर है इट इज गेटिंग रिचार्ज एज अ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इनमें से किसके कारण पानी की कमी नहीं हो रही है, स्कार्सिटी नहीं हो रही है, दैट इज डी, क्योंकि वाटर हार्वेस्ट कर रहा है वो तो पानी को बचा रहा है, उसको सेव कर रहा है। ठीक है, सो आंसर इज डी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। सो भाखड़ा नंगल रिवर जो है वो कौन से वैली प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बना है? सो इट इज मेड ऑन द सतलुज एंड ब्यास रिवर। ठीक है, अगर मैं भाखड़ा नंगल रिवर की बात करूं, सो लाइक इसका जो मेजर पर्पज है, मेन जो इसका रोल पर्पज है, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन एंड फॉर स्टोरिंग द रेन वाटर। ठीक है, मेन जो इसका पर्पज है भाखड़ा नंगल का, इट इज यूज फॉर इरिगेशन और ये आपका रेन वाटर को स्टोर करता है। भाखड़ा नंगल रिवर वैली जो प्रोजेक्ट है, इट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। इन 4 स्टेट्स को ये पानी देता है फॉर इरिगेशन। एंड ऑल्सो दिस भाखड़ा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, इट इज लाइक अ टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये रिवर वैली प्रोजेक्ट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो भाखड़ा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर Satluj Byas. Next question is Hirakund Dam is constructed on the river. So options are Ganga, Manjira, Manas या फिर Mahanadi. So Hirakund Dam is constructed on the river Mahanadi. It is in Sambalpur, Odisha. And Hirakund जो डैम है, it is like आपका one of the oldest आपका डैम है, कंस्ट्रक्टेड डैम है, जिसमें जो कि which is like a multi-purpose river valley project, one of the oldest multi-purpose river valley project। ठीक है, और हीराकुंड डैम अगर मैं और बताऊं तो इट इज लाइक लार्जेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, हीराकुंड डैम जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्दन डैम है, और ये जो डैम है ये आपका कहाँ पे है? संबलपुर, उड़ीसा में। क्लियर? सो अगेन इट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, मतलब इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है लोगों को ये लाइवलीहुड भी दे रहा है, एंड ये आपका टूरिस्ट के लिए भी है। ठीक है, सो हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन महानदी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन 26 इज द डाइवर्जन चैनल्स। देखो, डाइवर्जन नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई हमारे पास एक्वाटिक कोई ना कोई एक्वाटिक बॉडी थी, कोई ना कोई वाटर बॉडी थी, मे बी रिवर और सम एक्वाटिक बॉडी, उसका पानी डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, डाइवर्ट क्यों करा? शायद तुम उसको किसी और पर्पज के लिए यूज करना चाहते थे। सो द डाइवर्जन चैनल्स सीन इन द वेस्टर्न हिमालयाज आर कॉल्ड। सो वेस्टर्न हिमालयाज में जो पॉपुलर हैं डाइवर्जन चैनल्स, उनको तुम क्या कहते हो? ऑप्शंस आर गुल्स एंड कुल्स, खातिन्स, जोहाद्स या फिर रिचार्ज पिट्स। ठीक है, देखो गुल्स एंड कुल्स क्या है, इट इज शोन इन द फर्स्ट पिक्चर शोन ऑन द स्क्रीन। सो दीज आर बेसिकली द डाइवर्जन चैनल्स। ठीक है, ये डाइवर्जन चैनल्स क्यों बनाए जाते हैं? दीज आर मेड बाय द पीपल ओनली। ठीक है, और ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि तुम इसके पानी को फॉर इरिगेशन पर्पस यूज कर सको। क्लियर? और ये दीज आर मोर कॉमन इन लाइक जो हिल्स पे रहते हैं लोग, वहां पे ये ज्यादा कॉमन है, वो लोग इन डाइवर्जन चैनल्स को ज्यादा बनाते हैं, गुल्स और कुल्स। अगर मैं खादिन्स की बात करूं, जोहाद या खादिन्स की बात करूं, सो दिस इज ऑल्सो शोन इन पिक्चर 2। सो खादिन्स एंड जोहाद्स आर द अगेन man-made, these are the earthen ponds. So ह्यूमन ही बनाए, बट दीज आर काइंड ऑफ पानी को स्टोर करने के लिए पॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, और ये अर्दन मिट्टी के होते हैं। सो मिट्टी के हैं, पॉन्ड्स बनाए हैं, तो बेसिकली ये रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, सो जो आपके खादिन्स या जोहाद्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली पानी की पर्कोलेशन जो है, क्योंकि ये अर्दन पॉन्ड्स हैं, ठीक है, और मिट्टी के हैं, तो पर्कोलेशन ज्यादा हो रही है, वाटर रेन वाटर जो है वो रिचार्ज भी ज्यादा हो रहा है, स्पेशली इन पॉन्ड्स में। ठीक है, सो खादिन्स एंड जोहाद्स आर मैन मेड अर्दन पॉन्ड्स, जिसमें आप रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। इनकी प्रॉपर्टी है कि इसकी
इसमें जो पर्कुलेशन है या रिचार्ज जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज दीज आर मेड लाइक दीज आर अर्थन पॉन्ड्स, ठीक है। एंड खादिन्स एंड जोहाज आर मोर पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके बाद रिचार्ज पिट्स की अगर हम बात करें, सो रिचार्ज पिट्स हैं टू कलेक्ट द रेन वाटर। या तो तुम जो आपका रूफ टॉप वाटर है उसको तुम कलेक्ट कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट तुम रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हो। रिचार्ज पिट्स आर बेसिकली कि तुम डायरेक्टली रेन वाटर को यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ लाइक ये जो रिचार्ज, एक तो है कि तुम्हारा जो रेन वाटर है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है रेन वाटर से, ठीक है। सो लेकिन रिचार्ज पिट्स क्या है कि तुमने अपने रूफटॉप का पानी जो है वो पिट्स में इकट्ठा कर लिया, जो कि डायरेक्ट यूज है रेन वाटर का, मतलब ताकि तुम डायरेक्ट रेन वाटर को यूज कर सको। Instead of recharging it to the groundwater, you are using directly the rainwater through the recharge pit. So recharge pit आपके जो अगर आप रूफ टॉप वाटर को, रेन वाटर को आप इकट्ठा कर रहे हो एक पिट में और उस पिट के पानी को तुम यूज कर रहे हो, सो दैट इज द डायरेक्ट यूज ऑफ रेन वाटर। सो दीज आर द रिचार्ज पिट्स, ठीक है। सो गुल्स एंड कुल्स क्या है? दीज आर द डाइवर्जन्स जो तुम एक्वाटिक वाटर बॉडी का पानी डाइवर्ट कर देते हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू यूज दैट डाइवर्जन वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पज। खादिज एंड जोहाज आर मोर पॉपुलर इन स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आपके अर्दन पॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें अगेन तुम वाटर कलेक्ट कर रहे हो, बट इसमें क्या है कि क्योंकि ये मिट्टी के हैं तो आपकी इसमें पर्कोलेशन ज्यादा होती है, मतलब पानी नीचे रिचार्ज जो है वो ज्यादा हो रहा है। एंड रिचार्ज पिट्स आर द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर स्पेशली फ्रॉम द रूफ टॉप so that you can directly use the ground rainwater, ठीक है। So this was the last question of session 26. So friends who are taking admission either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are providing value added notes to the mentees, and we are also helping the learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. So mentors are helping the mentees for completing and submitting the assignments for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री। You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit our official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.